दोस्तों स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰੁਣ ਤਿਵਾਰੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू एवरीवन जो देख रहे हो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ रेकी टीचर है ना, रेकी टीचर भी है एंड किन्नी सारियां नवीं चीज़ां अज तुहाडे नाल गल्लां करांगे। कुछ तुसीं मैनूं स्टोन्स बारे दस रहे सीगे। हाँ जी, स्टोन्स जिद्दां क्रिस्टल्स हुंदे, क्रिस्टल स्टोन्स जो ब्रेसलेट्स विच भी हुंदे हैगे और तुसीं उहनूं कन्वर्ट कर सकदे हो, अपने नेकलेस बना भी सकदे हो ते ज्वेलरी भी बना सकदे हो। बहुत सारे लोग स्टोन बिजनेस दा काम भी कर रहे हैगे और बहुत अच्छा भी करदे पए हैगे। तो स्टोन्स जिहड़े हैगे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਰਥ ਸਟੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੋਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ डिस्टर्ब है या अलाइन नहीं हो पा रही है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨਸ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਂਟਡ ਕੁਛ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਕਾਮਨ ਸਟੋਨਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਈਸ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡ ਵਿਦ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜੀ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆइए जानते हैं ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੰਜੀਵਨੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। एरीज एक्चुअली आई थिंक बहुत ईगर है अपने बारे जानने के लिए क्योंकि कार्ड्स अपने आप ही एरीज के लिए गिर गए हैगे। सो दे एरीज द शो कोई आई थिंक एरीज पीपल दोज हू हैव सम ग्रुप मीटिंग्स और कुछ उन्होंने जेड़े इंटरव्यूज़ लाइनअप हैगे और काफ़ी अच्छे उन्होंने कनेक्शंस मेनटेन होने वाले हैगे। सो विच कैन बी मोर स्पेसिफिकली विद दैट organizations, institutions, those who are teachers, those who are in a workplace, those want to some recruitments. So it's a good for team group discussion. पूरा एरीज के लिए ग्रुप डिस्कशन का बहुत अच्छा टाइम है। एक्सपेंड एनर्जी हो रही है स्पेशली इन वर्कप्लेस। अगर तुसी अपने काम ਨੂੰ एक्सपेंड करना चाहते हो होर पार्टनरशिप कंसीडर कर रहे हो तो तुसी पार्टनरशिप भी कंसीडर कर सकते हो और मोर quality work you can generate. So energy is very high for Aries, especially in work area. So some details, some attentions you need to pay, then you can proceed easily. You can build up a good team, or those who already building a good team, they already have a good team, they can reconcile with some old work managements also. So things are pretty much going very fast. First 8 days मे बी तुहानू टाइम भी नहीं होएगा और बहुत सारी फ़ोन कॉल्स वर्क जो तुहाडे ईमेल्स और तुसी अपने आप को काफ़ी बिजी भी देखोगे और सारा जो तुहाडा हार्डवर्क है विल पे ऑफ। बट हाँ, थिंक before you go ahead because बहुत सारी चीज़ें मे बी इन द एयर। सो बेटर है डोंट मेक एनी castle in the air whichever is your main priorities, focus on that। एंड रिलेशन वाइज भी एरीज के लिए अच्छे दिख रहे हैगे साइंस। कुछ जो लोग मैरिज कंसीडर करना चाह रहे हैगे उन्होंने मैरिज के भी चांसेस हो सकते हैं। यू कैन मीट योर सोलमेट पार्टनर और मे बी यू कैन मीट सम न्यू पीपल ऑल्सो जो if you want to work on your relationship, this is also a good time. You both can enjoy the duality also. So
some have little bit जो relationship ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ work ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ delusions ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ conflicts ਆ ਰਹੇ ਹੈ, this is a good time to resolve as well. And yes, you can resolve with your communication also. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ. ਡੋਂਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਯੋਰ ਈਗੋ ਐਂਡ ਗੋ ਹੈਡ ਐਂਡ ਟਾਕ. Some those who want to take little road trips also, this also I can see on the cards. So physical and emotional health will be very good, and everything whatever you want to accomplish, this is a good time to accomplishment, and success is definitely for you. अपने efforts करते जाओ और at the end results you will get in. So pretty much good है Aries daily. That's अच्छे signs आ रहे हैं. ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜੀ, ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਨਸਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਟੈਰੋ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ for the guidance, or if any conflicts in your mind, in your heart, where you are just confused about to make decisions, so you can make a easy and clear decision through tarot cards also. So now ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਟੌਰਸ ਦੀ. Taurus ਦੇ ਲਈ this March is pretty much starting थोड़ी जी unpleasant होएगी, because you will feel कि people are not listening you, people are not paying attention to you, or maybe you will feel little bit of upset with your loved ones. So एक जो energy है वो थोड़ी सेटल करने की ज़रूरत है. अगेन आज मैंने लग रहा है कि दिस मार्च इज़ होल कम्युनिकेशन month, so communication is absolutely very much needed. Some can also create a good long distance relationship in a work area, in a career area. Those who are considered on taking any business which is related to import export, or maybe you want to connect a good big companies, or maybe you wanted to take some franchises also, you can take it. And then yes, experiences of life जो है pretty much काफ़ी expand हो रहा हैगा, and you will connect with the foreign land as well, कि जो like सिडनी के ब्रिस्बेन कनेक्ट हो सकते हैं, बट कनेक्ट हो सकते हैं, और जो अभी अपने आप को रिलोकेट करने के लिए सोच रहे हैं वो भी अच्छी तरह से पहले अपने प्लान्स के लिए काफ़ी एंथुसिस्टिक हैं, बट थोड़ी अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशंस चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए आउटकम क्रिएट कर सकती हैं. बट हाँ, अभी कुछ रश करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस कुछ चीज़ें जो अभी आप अपने आप में ट्राई कर रहे हो, और अभी आपको कुछ वर्क एरिया में भी अप्रूवल्स की ज़रूरत है वहाँ पर आपको, और वो आप अभी अपने लिए थोड़ा ओपन माइंड होकर सोचिए. डोंट फील कि हाँ एक ही एरिया में आपको अभी अगर कुछ चाहिए तो आप उसी एरिया में कंसिडर मत कीजिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड मत करिए आप. तो आगे बढ़ो, और मोर good things will come in next 17 days, or prosperity, happiness, faith, everything looks very good. नाइस. दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मार्च के इस महीने की, जो ये मार्च के अंदर सबके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं. और अब बारी आती है जेमिनी की. जेमिनी वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं हमारे स्पेशलिस्ट संजीव जी के साथ. जेमिनीज आपके लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो रेस्ट का है. आई थिंक आपने काफ़ी हार्ड वर्क करा है और कर भी रहे हैं आप, लेकिन आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना. मेडिटेशन मीन्स ये नहीं है कि आपको घंटों या अपने आप को मेडिटेशन मिले, फोर्सली यू वांट टू सेट फॉर द मेडिटेशन. नो, आप कहीं पर भी किसी भी एक अच्छे कॉर्नर में जहाँ पर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल हूँ, वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट भी अगर अपने आप में वापस अपने आप को यू कैन सिट क्वाइटली एंड देन डू सम गुड मेडिटेशन. अच्छे थॉट्स भी आपको हेल्प करेंगे, और दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग. आई थिंक कुछ डिसीजंस हैं जो आपने बनाने हैं, बट डिसीजंस आपसे बन नहीं रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आपको किसी की हेल्प भी नहीं मिल रही है, लोग आपको काफ़ी मिसयूज़ भी कर चुके हैं. तो ये है कि आप
थोड़ा अपने ऊपर पहले अपनी एनर्जी को वापस कनेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी के साथ, एंड देन उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लान्स दोबारा से बनाइए। तो कहते हैं ना कि जहाँ से गिरो वहाँ से वापस उठो, तो वो है आपके लिए। तो आप जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं आप यहाँ पर आकर एक पॉज आ चुका है, ये टेम्प्रेरी पॉज है, आगे आप जा सकते हैं इससे बड़े आराम से। और कुछ सेल्फ फुलफिलमेंट, अगर आपको ये भी कुछ इश्यूज रहेंगे इसमें, कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पर आपकी स्लीप डिस्टर्ब भी हो रही है, कुछ ऐसा भी है जहाँ पर कुछ वर्स आपको डर लग रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट हाँ इसमें ये है कि कुछ हेल्थ भी इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो गेट योर सेल्फ चेकअप विद योर डॉक्टर, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने ऊपर स्ट्रिक्टनेस मत रखिए, वो आपको हेल्प नहीं करेगी, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। सो पूरा मार्च का महीना मुझे लगता है आपके लिए बहुत नीडेड है। कंसंट्रेशन आपकी खुद अपने ऊपर करने के लिए, रादर देन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द पीपल, एंड मोर फोकस ऑन द आउटकम। सो डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, अभी आप आराम से रिलैक्स करने का टाइम है। गुड न्यूज़, फाइनेंशियल के जो भी आप वेट करो और जिसके लिए ये सारी आप जद्दोजहद कर रहे हो, वो आपको उसमें एंड में आपको रिजल्ट मिलेगा, मगर अभी अननेसेसरी पुश करने से आप सिर्फ अपने लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो बिकम अ क्लियर चैनल अपने लिए पहले, फिर आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स पे वर्कआउट कर सकते हो। तो दोस्तों जैमिनी वाले सारे के सारे थोड़ी सी रेस्ट करें और मज़े से करें, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके फाइनेंसेस आ रहे हैं, हाँ, एंड सो प्रॉब्लम नहीं है, इंजॉय करें जी। कई बार हम परेशान होकर काम को करते हैं ज़्यादा और बिना परेशान को हुए काम करते हैं, तो बिना परेशान हुए काम करो। कभी कभी नेचुरली चीज़ें जो है ना, वो उनको हमें खुद टाइम देना चाहिए कि अलाउ देम टू कम टू यू, रादर देन यू जस्ट स्ट्राइविंग बैक टू बैक, एंड आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, रादर देन यू जस्ट क्रिएटिंग योर हेल्थ इश्यूज। आप बहुत भाग चुके हो, आराम से भागो। सो अभी बात करते हैं कैंसर की। कैंसेरियंस क्या कह रहे हैं मार्च का महीना उनके लिए? कैंसेरियंस कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नई स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, और कैंसेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज। अभी आपको, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको उसकी डिटेल नॉलेज नहीं है, और उसके लिए आपको रिसर्च ज़रूरी है। सो कहीं भी आप अपने, जहाँ पर आपने अपना स्टडी मटेरियल रखा हुआ है, आप वहाँ पर जाइए, अपनी स्टडी में जाइए, आप वर्कआउट कीजिए वहाँ पर, आप चीज़ों को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, और कोई भी टॉपिक और कोई भी स्टेप लेने से पहले मेक श्योर कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो। एंड अवेकनिंग का टाइम भी है ये, जहाँ पर ये भी है कि कुछ टेम्प्रेरी स्टैंड स्टिल आपके भी हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है सबसे पहले अपने परसेप्शंस को डेवलप करने का। अगर आप अपना पर्सपेक्टिव अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो फिर आपको आगे अपने जो भी काम आपने नया शुरू करना है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी ये है कि थोड़ी सी प्रिपरेशन और चाहिए आपको, थोड़ा सा आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसमें यह है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको ये लग रहा है कि आप मिस भी कर चुके हैं, तो डोंट वरी, आप उसके लिए दोबारा कोशिश कर सकते हैं, और अपने आप को डिस्कनेक्ट मत कीजिए। और डिस्कनेक्शन जो है या डिसकंटेनमेंट जो है आपके लिए हेल्प नहीं करेगी। आपके लिए, जहाँ पर हम कह रहे थे कि लास्ट जेमिनी वालों को थोड़ा रेस्ट से चलना है, वहाँ पर आपको पूरा अटेंशन और पूरे अटेंटिव होकर काम करते ही रहने हैं। रेस्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इंटरनल स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, देन उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली आप उसको लेकर आ सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप कर सकते हैं उसके बाद आप। सो यस, फैमिली गुड टाइम है, हैप्पी टाइम है फैमिली का। फाइनेंशियली भी आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रगल नहीं दिख रही है, बट हाँ चीज़ें जो हैं आपके लिए बेटर यही रहेगा कि कुछ टाइम आप अपने आप को, जो भी आप अपना वर्ल्ड में, आप अपनी दुनिया जो भी क्रिएट करना चाहते हो या आप जो भी इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंडिपेंडेंटली करो। पार्टनरशिप इस वक्त मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी, और स्ट्रेस से काम बिल्कुल मत कीजिएगा, और सिंसियरिटी आपकी यही है कि सिचुएशन को पहले आप समझिए, और ऑलराउंडर हैं आप इस वक्त, आपके पास सब तरफ से पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, मगर हाँ पहले आप ज़रूरी है किसी एक जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना वेंचर, या जो भी आप जिस बारे में भी, जहाँ पर भी आप कोई न्यू स्किल या कोई न्यू नॉलेज या कोई भी आप स्टडी भी करना चाहते हो, तो आप पहले उस पर ध्यान दीजिए।
तो दोस्तों अब सीखने का जो मौका होता है लाइफ के अंदर हमेशा आता रहता है, और आपके स्टार्स ये बोल रहे हैं कि अभी कुछ नॉलेज फुल सीखा जाए। और साथ के साथ हम बात करेंगे लियो की, और लेकिन लियो से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने ऐप्स डाउनलोड नहीं किया तो ऐप्स भी आप डाउनलोड कर लें एंड्रॉयड पे और आईफोन्स पे, तो आप हमारा प्रोग्राम कहीं भी बैठ के देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। और अभी हम बात करते हैं लियो की। लियो के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? लियो के लिए एक अच्छा टाइम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी, और उन्हें अपने जितने भी एफर्ट्स हैं उसके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक उनको मिले भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। सो नेक्स्ट 10 डेज काफ़ी प्रिटी मच गुड दिख रहे हैं आपके लिए। एक हॉलीडे मूड आपका बना हुआ है, आप अपने रिवॉर्ड्स जो हैं उनको आप इंजॉय भी कर रहे हो। बट हाँ, इसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के बाद आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है अपने ऊपर, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशंस है, गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपको मैसेज भी दे रही हैं, बट यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट। सो पहले बेटर ये है कि केयर योरसेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। कई बार हमें क्या लगता है कि हाँ, आप दूसरों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अपने जो आपके आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा बेटर हैं रादर देन कि आप जो दूसरों की सुन रहे हो। तो बेटर ये है कि आप अपने आप को सुनो, और कोई भी चीज़ आपके लिए भी, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आप पेशेंस के साथ चलना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप दो काम कोई कर रहे हो या दो चीज़ों में आपका कोई इंटरेस्ट है या दो आप जॉब्स भी करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ को अभी लीव इट करने का टाइम नहीं है कि आप कोई चीज़ को छोड़ सकते हैं तभी आप एक चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। यू आर केपेबल टू टेक थिंग्स बोथ द हैंड्स। सो ये है कि आप नेक्स्ट 10 डेज तक, अभी 10-15 डेज तक आपका टाइम जो है मार्च में अच्छा चल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी आपको अपने लिए कुछ मी टाइम भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा आप स्ट्रेस ज़्यादा हो सकते हो एंड ऑफ द मार्च में, और आपको उस वक्त अपने लिए वर्कआउट करना है जहाँ पर आपको चीज़ों को फिर से, मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा सोचना नहीं है। और जो भी अगर कहीं पर आपके कुछ लॉसेस के थोड़े से चांस दिख रहे हैं, वो इमोशनल लॉस भी हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस नहीं है ज़्यादा, इमोशनल लॉस ज़्यादा है। तो इसीलिए आप ज़्यादा किसी के साथ ओवरली कनेक्ट मत कीजिएगा और ओवरली अपने आप को दूसरों के कनेक्शन में इतना भी ज़्यादा मत आप इन्वॉल्व हो जाइए कि आपकी अपनी जो बेसिक जो आपकी नीड्स हैं आप उसको भूल जाओ। तो गिव योर सेल्फ टाइम, इंजॉय कीजिए, क्योंकि कई बार आपको लाइमलाइट में रहने का बहुत शौक भी है, बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन उसमें रहते रहते आप खुद ही अपने आप को सेल्फ हर्ट कर जाते हो। तो आप थोड़े से ध्यान से अपने इस मार्च के महीने में अपने आप पे टाइम दें। और अभी बात आती है लिब्रा की। लिब्रा के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं मार्च के महीने के? लिब्रंस के लिए चीज़ें जो हैं वो प्रीटी मच ऐसी हैं कि दे आर लुकिंग अप थिंग्स और लुकिंग फॉरवर्ड टू समवन हु कम टू हेल्प देम, और वो हेल्प आपको मिल भी जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी, और उस फाइनेंशियल हेल्प में आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, लिबरल्स के लिए एक चीज़ और भी है कि ये भी, अगर किसी को फाइनेंस में कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो कमिटमेंट आप देख के कीजिए, क्योंकि आप शायद कर ले कि हाँ आप 90% कमिटमेंट कर ले और दे आप सिर्फ 30% दे सकते हो। तो पहले ओवर कमिटमेंट से बचिए, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है आपको। और कुछ डिसीजंस जो आपको लग रहा है कि आपने ले लिए हैं और वो क्रिएटिव अचीवमेंट्स के लिए आपको आगे सपोर्ट ही करेंगे, बट थोड़ा इम्पल्सिव नेचर को आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को। और अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, मगर हाँ इसमें ये है कि आपको यू नीड टू लिसन अदर्स ऑल्सो, क्योंकि जहाँ पर वो 20-30% में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ पर ये है कि आपको उस वक्त दूसरे लोग जंप इन भी कर सकते हैं, आपको पुश भी मिल सकता है चीज़ों को वापस से स्टार्ट करने का, या अपने जो भी आपके प्लान्स हैं उसके साथ अगर आप स्ट्रांगली असर्टिवली जाना चाहते हैं तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो काफ़ी बिग चेंजेस लेकर आ रही है मिड ऑफ द मार्च में। बट हाँ, आपको कैर्ड अवे नहीं होना है, और अगेन आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ आप कनेक्टेड हैं, और जो भी आप अगर टीचर्स हैं, अगर आप कहीं किसी को मेंटोर कर रहे हैं, या अगर आप खुद एक अच्छी पोस्ट पे हैं जहाँ पर आप खुद चीज़ों को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं, तो एक टीम वर्क आपको बहुत हेल्प करेगा। एट द एंड मार्च में ये है कि थोड़ा स्ट्रेस से बचिए, और एक्स्ट्रा लायबिलिटी जो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा कमिटमेंट, ओवर लायबिलिटी, ओवर स्ट्रेस से आपको बचना है।
और बाकी आप अपने एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों के साथ में भी, और आप अपनी पार्टीज भी कर सकते हैं एंड ऑफ द मार्च में। सो पूरा मार्च आपका थोड़ा सा यही रहेगा कि आप थोड़ा ट्रैप रहेंगे, कि आप थोड़ा डरेंगे भी कि एक्शन लें या एक्शन ना लें। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप कुछ भी ऐसा कमिटमेंट मत कीजिएगा जो बाद में आप निभा ना पाओ। तो दोस्तों आप थोड़ा सा केयरफुली इस मार्च के महीने में चलें। और अभी हम बात करेंगे सजिटेरियस की, सजिटेरियस की। और मैं आपको बता दूं, आप हमें देख रहे हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे और इंडस एज पे, और सुन रहे हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे। सेजीज, आपके पास इस वक्त इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी है कि लोग आपके पास खुद ही आ रहे हैं नए नए आइडियाज़ लेकर, और जो भी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं नो मैटर वो भी बहुत अपने अपने तरह से आपको एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए आ रहे हैं। एनर्जीज जो है वो काफ़ी ऑनेस्ट है, और इस ऑनेस्टी को आप यूज़ कर सकते हैं, और आपके लिए ऑलरेडी टाइम अच्छा ही चल रहा है। लेकिन हाँ, इसमें यह है कि आप अपनी फ्रीडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और आप अपनी फ्रीडम के साथ काम करना चाहते हैं। मगर हाँ, इस वक्त कोई भी अगर आपके पास कोई अच्छी एनर्जी आ रही है और आपको लग रहा है कि इससे आप और ज़्यादा अपने काम में एक फ्रेशनेस लेकर आ सकते हैं, और ज़्यादा आप इसमें एक शाइनिंग लेके आ सकते हैं, अपनी स्किल को आप और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है अपना फन तो करिए आप, और इंडिपेंडेंट काम भी करिए, मगर जो एनर्जी आपके साथ इस वक्त नोइंगली और अननोइंगली आ रही है उसको थोड़ी सी अटेंशन भी दीजिए। सो कुछ फीमेल्स हैं जो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा अपसेट मत होइए चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा अपने पास्ट को लेकर भी आप कुछ चीज़ों को होल्ड मत कीजिए, क्योंकि होल्ड करना फिर आगे बढ़ने से रोकता है जी। और मूवमेंट हर किसी के लिए चाहिए, मूवमेंट ही ज़रूरी है। सो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आप अपना प्रेजेंट मत डिस्कस कीजिए और प्रेजेंट को मत कनेक्ट कीजिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। तो जो एक्सपीरियंस आपको हो गए ठीक है, वो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल ज़रूर बना गए हैं, बट उसमें आपकी जो एक डेवलप हुई है स्किल वो हुई है कि एक समझदारी, एक विटीनेस। तो आपको ये है कि आप कीन इनसाइट बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर आप इस वक्त अपना डिवोट कर रहे हो, बट उसमें आपको ये है कि जजमेंट ज़्यादा नहीं करना है। चीज़ें फेयर हो सकती हैं, और आपके भी थोड़े से जो स्ट्रगल जो हैं वो ये आ रही है कि आप किसी भी चीज़ को अभी छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो, आप उसको लास्ट मोमेंट तक करना चाहते हो, और ये नो गिव अप वाला जो सीन है ना कि मुझे गिव अप नहीं करना है, वो एक आपका एजेंडा बना हुआ है इस पूरे मार्च के अंदर। बट हाँ, थिंग्स आर गोइंग ऑल ओवर यू, अराउंड यू, और ये है कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी काफ़ी इंटैक्ट है, बावजूद इसके कि आप थोड़े से एनर्जी आपकी थोड़ी सी अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। बट हाँ, इट्स अ गुड टाइम टू गेट रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए और अपने आप को एक्सपेंशन में और ज़्यादा टीम वर्क में लेकर आइए, रादर देन डूइंग एवरीथिंग ऑल ओनली। दैट्स वेरी नाइस जी। एंड अभी बात करते हैं पाइसिस की। पाइसिस के मार्च के महीने के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? पाइसिस का पूरा ध्यान इस वक्त रिलेशनशिप के ऊपर है। पाइसिस जो हैं वो अपनी किसी भी पार्टनरशिप को भी बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा टाइम है आपका सबको समझने का भी, और दूसरे भी आपको उसी समझदारी से समझ भी रहे हैं। सो एक मेच्योर जो है ना मूवमेंट्स, जो एक मेच्योरिटी जो है, जो अभी तक आपको शायद लग रहा था कि नहीं आपने अचीव करी है, तो एक मेच्योर चेंज आ रहा है, और रिलेशनशिप भी अच्छी डेवलप हो रही हैं, पोटेंशियल भी है आपके काम करने में, तो रिलेशन भी आपके अच्छे हैं, और इसमें यह है कि आपको रिस्पेक्ट भी पूरी मिल रही है। मगर फिर भी आप चीज़ों को लेकर थोड़े से बोर हो रहे हैं, तो उतना ही काम कीजिए जितना आपको लेट डाउन ना करे, आपकी एनर्जी को इफेक्ट ना करे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास पुराना इतना पाइलअप हुआ है काम कि वो काम आपसे अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, और नया काम आप ले नहीं सकते हो, तो पुराने को फिनिश करते करते आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर ये भी है कि हाँ, कुछ चीज़ें जहाँ पर जो आपका एक आपका जो तरीका है काम करने का, परफेक्शन, कि आपको ये है कि टाइम कितना भी लग जाएगा लेकिन चीज़ें परफेक्टली निकल के आनी चाहिए। सो वो परफेक्शन में आप डिलेज थोड़े फेस कर रहे हो। सो ठीक है, परफेक्शन अच्छा होता है, लेकिन ये है कि रिजल्ट्स जो है आपके
थोड़ी बहुत उसमें आपको कॉन्फिडेंट एनर्जी चाहिए। आप थोड़े से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपना लूज़ कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट टू मच हार्ड वर्क। एंड धीरे 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 आप जो भी अपना छोटा छोटा, और जो लोग बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं डाल रहे हैं उनके लिए ऑपोजिट है कि आप थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क डालना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालना शुरू कीजिए। एटलीस्ट एफर्ट डालिए तो आपके काम जो है मूव हो सकते हैं। इट इज़ ऑल स्टैमिना। आपका पूरा मार्च जो है स्टार्टिंग अच्छी चल रही है, लेकिन एंड में आते आते आपके स्टैमिना टेस्ट होंगे। हो सकता है चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाएं, लेकिन आपको वो अचीवमेंट्स लानी है और उन अचीवमेंट्स के लिए आप जो भी अपना कर सकते हो अपने आप के लिए बेस्ट, वो ज़रूरी है आपको करना। सबसे पहले ये है कि आपको इतना हार्श नहीं होना खुद से, ज़्यादा भागना नहीं है चीज़ों के पीछे। लेकिन हाँ, अगर आप आपका एक स्केड्यूल भी आपने जो सुबह शुरू किया और आपका दोपहर तक काम नहीं भी बना तो डेफिनेटली रात तक बन जाएगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे और आप अपना काम करते रहोगे। बट हाँ, ज़रूरी ये है इसके अंदर कि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से दूर रहना है, डिबेट ज़्यादा नहीं करनी है और अपने ओपिनियन ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं। जहाँ पर आपको लगे कि आपको चुप रहना चाहिए और दूसरे को बोलने दीजिए, वहाँ पर आप थोड़ा सा अपनी एरोगेंस को कंट्रोल कीजिए और लेट पीपल गिव चांस, उनको चांस दीजिए। जी, नाइस। एंड आप हम ये प्रोग्राम लेके आते हैं हर बार महीने के स्टार्टिंग में, एंड मार्च के महीने के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो अभी हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स हमारे स्पेशलिस्ट संजीवनी जी के साथ। एक्वेरियंस आपके लिए लाइफ एक्सपीरियंस इस तरह से हो रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में इवेंट्स इतने इम्पोर्टेंट आ रहे हैं जो आपको एक पूरा आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। हो सकता है जो आप पिछले साल रहे होंगे आप अब अपने आप में काफ़ी चेंज भी देख रहे हो, चीज़ों को समझने में भी आपको काफ़ी अब परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, लोगों को आपको समझने में परेशानी हो सकती है क्योंकि ये चेंज जो है ये इंटरनल चेंज है, एक मैच्योर चेंज है जहाँ पर ये कहेंगे कि आप अपनी पावर को दोबारा फील कर रहे हो, जो कहीं पर आपकी थोड़ी सी गुम हो गई थी। और ये भी नहीं कह सकती मैं कंप्लीटली गुम हो गई थी, लेकिन ये है कि एक नई एनर्जी, एक नया एक्सपीरियंस, आप अब एक नए इमोशंस में हो और अपने आप को रेस्ट के साथ आप आगे बढ़ाना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि हाँ, काम को इतनी ज़रूरी बनाकर कर दिया जाए कि आप उसमें अपना मेन पर्पस ही भूल जाओ। तो इसमें यह है कि इट इज़ द टाइम फॉर यू। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं। 100% आपके लिए ग्रीन लाइट्स हैं और लाइफ को आप साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हो। थोड़ी बहुत लग्जरीज की, अब जहाँ पर पहले ये था कि आप एक सिंपलिसिटी में इतना आ गए थे, लेकिन अब आप थोड़े से आपकी जो इच्छाएं हैं वो लग्जरीज की तरफ भी जा रही हैं और आप थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहे हो। नए आइडियाज़ आप सोच रहे हो, पर ज़रूरी है उस आइडियाज़ पे वर्कआउट करना, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत है आपके पास। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास नॉलेज भी बहुत है, लेकिन उसमें आप नेक्स्ट स्टेप क्या आपको लेना है वो ज़रूरी है। आपको अपने अगर आप अपने तरफ से कोशिश कर रहे हो तो आप उसमें आपको बाहर थोड़ा सा निकल कर आना चाहिए। और आप बाहर जब तक नहीं आओगे, जब तक आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपके कनेक्शंस को आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो तब तक आप वहाँ पर थोड़ा सा खुद एक डायलेमा में रहोगे। सो ज़रूरी ये है कि चीज़ें जो हैं इस वक्त स्टेबल अप्रोच में आपके पास आ रही हैं, आप भी आप उसका फ़ायदा ही उठाओ। और ये है कि अभी अपने सेंसेस को, अभी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को आपको समझने की ज़रूरत है। और काफ़ी इजी टाइम है आपका लाइफ में, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी है कि इतना स्ट्रगल करके आपने आज जो अचीव किया है उसको एंजॉय करने का टाइम भी है। सो आप एंजॉय करने के लिए पूरे अलाउ हो करो आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी आज तक जो आपने अकॉम्प्लिश किया है, जो आपने छोटे छोटे गोल्स जो आपको खुश कर रहे हैं, उसको आप, अब एक टाइम है आपका सेल्फ इंजॉयमेंट का। सो डू इट। तो बहुत ही बढ़िया महीना है आपका, तो एंजॉय करें क्योंकि अपने आप के अंदर खुशी मिलती है और उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस महीने में कर सकते हैं। जी, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम तो काम ही करते रहते हैं और हम कहते हैं कि हर काम हम बस ख़त्म कर लें। जो दिन की जो लाइफ है ना वो
घड़ी के जैसे टिक 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 चलती रहती है। तो ये लगता है कि जो सुबह से शुरू किया वो रात को ख़त्म होना ही चाहिए, लेकिन वो ख़त्म होना ही चाहिए ज़रूरी नहीं है, बट वो कैसे ख़त्म होना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी। और काम कभी खत्म नहीं होते। So enjoy yourself. Happen what is need to be done, not what you have to be done. तो इसलिए इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल की दुनिया में कह सकते हैं इंजॉय करें, रील्स बनाएं, टिकटॉक करें, इंजॉय करें, इंजॉय करें और फेथ रखें कि एट द एंड चीज़ें पूरी होंगी और आपके फेवर में ही होंगी। फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो लूज नहीं होना चाहिए किसी का भी। तो चलते हैं कैप्रिकॉन की तरफ। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कैप्रिकॉन वाले, क्योंकि आते 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 यहाँ तक उनको सबके थ्रू जाना पड़ता है। तो कैप्रिकॉन के स्टार्स टैरो कार्ड साथ में क्या कह रहे हैं मार्च के महीने के? एक्वेरियंस को फॉलो कर रहे हैं। कैप्रिकॉन्स थोड़ी सी अपनी स्टबन एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका एग्रेशन जो है वो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको वो एक सेटल्ड मैनर में यूज़ करें। अपनी एनर्जी को खुद कैसे यूज़ करना है उनको सीखना ये बहुत ज़रूरी है। सो उनके लिए एक्वेरियंस, जिनके एक्वेरियंस पार्टनर हैं वो एक्वेरियंस की एनर्जी को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। बट हाँ, चीज़ें अभी उनके लिए कुछ मैं ये कहूँगी कि मिस्टीरियस ही हैं, जहाँ पर ये है कि उनकी इंट्यूशन उनको कुछ और गाइड कर रही है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड कुछ और दिखा रहा है। सो काम कैसे होंगे, कैसे काम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए वो थोड़े से मिस्टीरियस हो रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें इस वक्त उनके सामने क्लियर नहीं है। डिसीजंस की प्रॉब्लम नहीं है उनकी, उनका प्रॉब्लम ये है कि जो वो करना चाहते हैं उनके सामने वो अकॉर्डिंग टू देयर प्लानिंग वो आ नहीं रहा है। सो वहाँ पर जैसे कैप्रिकॉर्न्स की आदत है, वो भी ज़्यादा मुश्किल से काम नहीं करना चाहते हो, वो भी आसानी से काम हो जाए तो ठीक है, लेकिन काम कैसे होगा वो मुश्किल होती है उनके लिए। वो प्लान करना, थॉट कहाँ पे सही क्लिक लगेगा। तो आप थोड़ा सा फर्स्ट मैं ये कहूँगी कि 15 डेज तक आराम कीजिए, ज़्यादा आप उसमें अपनी एनर्जी मत लगाइए। और हाँ, अगर आप किसी के पास हेल्प के लिए जाएंगे भी, आपने सोचा कि चलो इसको फ़ोन करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाएगी, तो वो हो सकता है कि वो वहीं से आपको कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो ये है कि अभी आप आराम से बैठिए, अपने आप को एक मेडिटेशन आपके लिए आप मेडिटेशन आप करते जाइए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आपके लिए डिस्कवर जो होंगी ना वो नेचुरली होंगी। आपके अभी 10-12 दिन तो आपसे खुद नहीं होंगी, फिर उसके बाद एकदम स्विफ्ट आप देखोगे कि काफ़ी आप आगे बढ़ रहे हो और ओवरकम ऑब्स्टिकल्स भी हो रहे हैं आपके। जो काम आपके पेंडिंग काफ़ी पड़े हुए थे, जो नहीं चल रहे थे, वो एकदम से ही स्टार्ट हो जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए बहुत मैटर करता है और डेडिकेशन, वर्क डेडिकेशन आप में हमेशा ही रहता है। सो आप हमेशा दिखाते हो कि करना है तो ये काम करना ही है, फोकस आपका बढ़िया रहेगा। कुछ सैडनेस आपको आ सकती है, जहाँ पर फिर से आपकी कुछ इमोशनल सैडनेस ही हो सकती है, जिसमें मैं ये कहूँगी कि जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको अपने इमोशनल हेल्थ का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। और थोड़े से रिग्रेशन हो सकता है, किसी फैमिली मेम्बर को लेकर भी हो सकते हैं। सो डोंट पे टू मच अटेंशन ऑन डिटेल्स, चीज़ों को कभी कभी थोड़ा सा लेट गो करना भी अच्छा रहता है। एंड जो लोग आपसे कांटेक्ट में अभी नहीं हैं वो भी आपके कांटेक्ट में एंड ऑफ द मंथ आ जाएंगे। सो ऑल गुड, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आइए, ड्रीम बिग, और चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव्स अपने लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन मत कीजिए, और किसी की नेगेटिव एनर्जी भी आप जल्दी एब्जॉर्व कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको अपने आप को चेक रखना है। आप अपनी एनर्जी क्लियर करते रहिए टाइम टू टाइम। तो आपको 15 दिन मिले हैं रेस्ट करने के लिए और 15 दिन मिले हैं काम करने के लिए। सो बेस्ट विशेस फॉर योर मार्च। एंड अभी बात करते हैं स्कॉर्पियो की, कि स्कॉर्पियो के टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं मार्च के महीने के। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा फैमिली टाइम है, फैमिली को एंजॉय कीजिए और मी टाइम मत एंजॉय कीजिए। जितना ज़्यादा आप अगर अपने वर्क कलीग के साथ अच्छी एनर्जी रख सकते हैं, वर्क पे अपने अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, अच्छा वहाँ पर आप अपने लिए अपने लिए पर दूसरों के लिए भी जितना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, उतना ही कंफर्टेबल एनर्जी आपको पे बैक भी करेगी। और हाँ, यहाँ पर आपको भी जहाँ पर ये है कि रहना अच्छा लगता है अकेले, लेकिन कुछ पर्सपेक्शंस जो हैं आपके भी इस वक्त टेम्पररी समझ में नहीं आएंगे आपको। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए रादर देन दूसरों को ज़्यादा समझने के लिए।
और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो आपसे मिस हो गई हैं, वहाँ पर भी है कि आप अपनी आइज़ ओपन रखिए, प्राइज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ रिकनेक्शंस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर कि आप खुद एक पूरा प्लानिंग ही चेंज करने वाले हो, जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में, जिसे कहें कि कहीं दूर कोई बिजनेस लेना चाहता है या कोई घर बनाना चाहता है या कोई ऑफिस खोलना चाहता है, या ये कीजिए कि जहाँ पर प्लानिंग्स ऐसे हैं हो रही हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस प्लानिंग है वो कामयाब भी हो जाएंगी, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी भी रहेगी उसके अंदर। इम्पॉर्टेंट ये है अभी के टाइम जो है वो आपको थोड़ा सा करेजियस बनने का है, क्योंकि आपको खुद थोड़े स्टेप्स आगे लेने पड़ेंगे, थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा। जो आप अपने लिए अभी कहते हैं ना कि फॉसिंग करेज, जो आप अभी अपने लिए दूर दूर तक देख रहे हो कि हाँ मैं ये यहाँ पर हम ये शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो सकती हैं, तो कुछ रिफ़्रेश कर रहे हो आप अपनी एनर्जी को, जहाँ पर हो सकता है कि जिससे आप उम्मीद कर रहे हो वहाँ से आपको कोई हेल्प ना मिले, तो अभी कंसिडरेशन होती ही रहेगी। मार्च में सिर्फ आप यही सोचते रहोगे प्लान ए और प्लान बी, तो डिसीजंस का टाइम नहीं है, ना ही कुछ चीज़ें अकॉम्प्लिश हो रही हैं। ओवर थिंकिंग से बचिए और चीज़ों को दोबारा कंसिडर करना ज़रूरी भी है आपका। अभी ये पूरा आपका जो मार्च है ना, ये सिर्फ आप अपने प्लान्स को वापस दोबारा रीप्लान करने में लगाते रहोगे। तो आप सोच समझ के प्लानिंग बनाएं। बिल्कुल, एंड ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं, बस चेंजिंग ट्रैक पे ध्यान दीजिए कि अगर ट्रैक चेंज हो भी रहे हैं तो वो ट्रैक चेंज करने हैं, करेज आपका है तभी होगा। तो अभी बात आती है विर्गो, जो विर्गो के स्टार्स क्या कह रहे हैं मार्च के महीने के। वर्गोस थोड़ी सी सैडनेस फील कर रहे हैं, और उनकी सैडनेस तभी जा सकती है जब वो फॉरगिव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि चीज़ों को टाइट रखना, होल्ड करना, फॉरगिविंग का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जो आप आओ और हमारे को हर्ट करते जाओ और हम आपको फॉरगिव करते जाएं। फॉरगिवनेस खुद अपने लिए होती है, फॉरगिवनेस खुद सेल्फ के लिए भी होती है कि हाँ अगर आप जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है या जिस एनर्जी में आप इस वक्त हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि एफर्ट्स बहुत डाले हैं आपने लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस टाइम में आपके लिए खुद मैं ये बोलूँगी कि पीछे भागना नहीं है चीज़ों के। आपको भी जो आप कुछ गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो आपका डेस्टिनेशन है ही नहीं है। सो जहाँ पर हमने पहले बोला था कि ट्रैक चेंज करने का टाइम है, आपके लिए है कि आपको एक क्लैरिटी अपने लिए खुद के लिए चाहिए। अपनी एडवर्सिटीज से आप भाग रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे तो डेफिनेटली मेरा फ़ायदा होने वाला है नहीं है, यहाँ पर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आप रॉन्ग ट्रैक पे भाग रहे हो। वहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा रोकना है। अच्छी बात यह है कि आप मल्टीटास्कर हो, और अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली अपनी किसी भी आने वाली अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। आप दोनों चीज़ें साथ में रहकर भी काम कर सकते हो, आप 2 डिफरेंट ग्रुप्स में भी काम कर सकते हो, दो डिफरेंट जॉब्स भी कर सकते हो, और मैं ये कहूँगी कि 2 डिफरेंट तरह के फोकस भी आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं कि एक चीज़ पे फोकस रखो, अपना 2 जगह पे फोकस मत रखो। मगर आपके लिए ये है कि आपसे एक पे फोकस हो नहीं रहा, आपका दिमाग बार बार दूसरी चीज़ पे जा रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि एक बैलेंस बनाकर चलो और सेल्फ हर्ट मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें जो है ना आपको एंजाइटी ज़्यादा दे रही हैं, और कुछ गिल्ट भी हैं जो जहाँ पर आपको पता है कि आपकी कहाँ पर क्या गलतियाँ हैं। अच्छी बात यह है कि गलतियाँ पता होनी चाहिए, लेकिन गलतियों से सेल्फ हर्ट नहीं करना चाहिए, उससे सीखना ही चाहिए। सो ये है कि जो पास में आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं, जो रिग्रेट्स, रिमोर्स आप अभी फील कर रहे हो, उसमें आपको खुद बाहर निकलना है। सो हेल्प योरसेल्फ। आपके लिए अपॉर्चुनिटी एक जो कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रही है, वो ये है कि विद इन 3 वीक्स आपको मिल जाएगी। सो 3 वीक्स में आपके लिए एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है, अच्छी एनर्जी आ रही है, यूज़ कीजिए उसको। तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, और जहाँ पर आपका मन लगता है, जिस जगह में भी आप खुश हैं, बस वहाँ पर आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए।
तो दोस्तों ये थे मार्च के महीने के आपके टैरो कार्ड्स के स्टार्स क्या कह रहे हैं, और मैं एक बार फिर से संजीवनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और साथ में आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपका बहुत ही प्यार मिलता है इस प्रोग्राम को, और आप हमें साथ जुड़े रहिएगा। तो आप अपने मैसेजेस हमें कर सकते हैं, और साथ के साथ मैं फिर से याद दिला दूं कि आप हमें सुन भी सकते हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे, देख रहे हैं फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे और इंडस एज पे। और जाने से पहले संजीवनी जी, मैं अपने कार्ड तो खुलवा लूं आपसे कि मेरे कार्ड क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड सिर्फ आपको सजेशन दे रहे हैं, और आपकी सजेशन इस वक्त ये है कि टेक द लीड वरुण जी। जितनी लीड लेना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आप करिए। और अगर आपके माइंड में कुछ है जो आप काफ़ी आप सब जानते हैं कि वरुण जी मल्टीटास्कर हैं, और काफ़ी इनकी एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग, इतनी पावरफुल है कि ना ये खुद बैठेंगे ना दूसरों को बैठने देंगे। अगर कोई ना भी चाहे तो भी वो इनसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाएगा। सो आपके सारे जो मेन आपकी जो फील्ड है, जो जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक स्किल होती है, एक कोई जो कहते हैं ना कि बॉर्न स्किल, बॉर्न आर्ट होती है, आप उसको साथ में लेकर इतना आ गए हैं यहाँ पर, आगे भी आप आज बहुत अच्छा करेंगे। और ये है कि चीज़ों को जो जैसे आपका नेचर है भी और आपके बारे में सब जानते भी, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। सो लाइफ को एंजॉय करो, और आगे आने वाला टाइम जो है आपका, आगे आने वाले महीने जो हैं आपको स्टार्स दिखा रहे हैं। सो यू रीच फॉर द स्टार्स। रीच फॉर द स्टार्स कहने का मतलब है लाइट, कैमरा, एक्शन। बिल्कुल। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। मिलेंगे आपको अगले महीने, लेकिन हम आपको बता दें कि बीच में हम कुछ आपके लिए लाइव प्रोग्राम भी लेके आएंगे, लेकिन आज इसी से इजाज़त लेते हैं। और आपको अपने मार्च के महीने का ये प्रोग्राम कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। संजीवनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लेते हैं हम आपसे इजाज़त। जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और इंडस एज के साथ। नमस्कार। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.